So as requested by some of the students, I will be talking about alternating current today. And when I talk about alternating current, I try to cover all the important derivations here so that when you try to do it at home, you really enjoy doing the questions. So आज मैं focus लेके चलूंगा सिर्फ और सिर्फ derivations का. So if we look at an alternating supply, what happens is then an alternating supply is generated through a generator. And in a generator, what do you have? You have a magnet whose, let's say, the north and south pole are like this. You have a coil of N turns, and this coil is rotated, and this coil is rotated between these two poles. So what happens when we rotate such a coil? What happens when we rotate such a coil with an angular speed omega? So omega angular speed से coil को घुमा दिया. Coil का अगर area is equal to A, number of turns capital N और magnetic field में है, तो there'll be a flux linked with the coil. Now as the coil is rotating, flux is equal to B dot A. And if there are capital N turns, then flux is equal to capital N times B dot A. So phi is equal to N B A cos theta, where theta is equal to omega into small t because it's rotating. So this is how the theta or the angle between the magnetic field and the area vector would vary. So keeping that in mind, we have phi is equal to NBA cos omega t. And if I differentiate it to get the EMF generated, E will be equal to d phi by dt, which is equal to NBA omega cos omega t. Now, when you get such a relation, cos and sine omega t, I'm so sorry, this will be NBA omega on differentiation sine omega t. Forget about the minus sign because we're talking about the magnitude of EMF. So the magnitude of d phi by dt, and this is how it is. इसका मतलब जो हमें EMF generated मिलेगा वो कैसा होगा? वो एक साइनोसॉइडल ग्राफ होगा. आपको यहीं से पहला क्वेश्चन जो हमें आंसर करना है वो ये है कि why is the EMF that we get or the electric supply that we get at home sinusoidal in nature? It is sinusoidal in nature because that's how a generator is designed. So generator का design अगर ऐसा है तो generator से ऐसे ही मुझे EMF induced मिलेगा. तो generator से अगर EMF induced ऐसा मिल रहा है, so इसकी जो peak value है, this peak value is equal to NBA omega when sine omega t reaches 1, or it will attain a negative peak of minus NBA omega. So this can be called as E naught or the peak value of EMF. So इसलिए हमने कहा कि E is equal to E naught sin omega t. अब बच्चों इसको हम चेंज नहीं कर सकते. We cannot change E equal to E naught sin omega t, and the basic reason is कि ये supply एक पावर स्टेशन से मेरे को मिल रही है. So I don't have a control on it and I cannot change it. Now this supply is fed to us, but we've been working with a DC source till now, और DC source और AC source का difference हमें पता है. DC source से we get a constant voltage. AC source से we are getting a fluctuating voltage. So if I have to compare DC and AC, I should have a constant value assigned to AC also. Now, what constant value do I assign to an AC here? We know that if I look at an AC supply, the AC supply is sinusoidal. So if I have an AC supply which is sinusoidal in nature,
ऐसे वेरी कर रहा है हमारा EMF विथ टाइम। सो बच्चों, अब मैं अगर इसकी मीन वैल्यू निकालूंगा ओवर अ साइकिल, तो मुझे पता है फॉर वन टाइम पीरियड, दिस इज वन टाइम पीरियड, again it is getting repeated, so 0 to capital T, this is one time period. If I find E mean, I know it will come out to be 0. इसीलिए हम यहां पर निकालते हैं अगर E mean, जिसे हम एवरेज भी बोलते हैं, तो वो हम हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं, राइट। सो हम हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं मीन वैल्यू, यानी इतने के लिए, और वो आती है निकल के 2/पाई ई नॉट के इक्वल। सो पीक वैल्यू को 2/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मीन वैल्यू मिल जाएगी, और ये मीन वैल्यू हाफ साइकिल के लिए डिफाइंड होती है। सो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन, वी शुड हैव समथिंग डिफाइंड फॉर द इंटायर साइकिल, सो दैट इज व्हाई वी फाइंड ई आर एम एस और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मतलब मैं ई की सारी वैल्यूज का स्क्वायर करूं और फिर उसका मीन निकालूं, एंड देन टेक अ रूट ऑफ इट, अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वैल्यू ई आर एम एस की चाहिए। सो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी ई नॉट बाई रूट 2। सो नॉर्मली जब हम बात करते हैं कि हमारे घर पे 220 वोल्ट्स की सप्लाई है, तो व्हाट डू वी रियली मीन? वी मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट्स had it been a constant supply irrespective of the time. So we're talking about the RMS value. This is what we mean by the RMS value. तो सबसे पहली चीज है कि what do we understand by the term RMS value should be clear to you from here. Now, when we've understood RMS value, and I hope all of you would be noting it down with me as well. तो RMS value की अगर मैंने बात कर ली, तो अब मैं आता हूं नेक्स्ट पे कि how do various electrical devices like a resistor, an inductor, and a capacitor behave when connected to AC. So let's first look at the case of a resistor. A resistor connected to an AC supply. So AC supply को हम ऐसे दिखाते हैं, a circle with a sinusoidal wave inside it. This is connected to a resistance. This is how the AC supply is connected. So resistor connected to an AC supply. How does a resistor behave when it is connected to an AC supply? We know we cannot change the AC supply. So E is equal to E naught sine omega t. This is how the AC supply is coming. I have to find I, current through the resistor. So I we know is equal to E naught by R from the circuit. So we can say that the value of I will be equal to I is equal to E by R. E naught नहीं, E naught तो peak value पे ही होगी, the peak value of the current. So मैं peak value of the current की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं general value of current की बात कर रहा हूँ, which will be equal to E by R, which is equal to E naught sine omega t by R. So अब अगर मैं देखूं तो I आ गया मेरा कितना, E naught अपॉन R साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, ये आ गई करंट की वैल्यू। सो करंट की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी ई नॉट बाय आर। सो कैन आई से ई नॉट बाय आर is equal to the peak value of current, or I naught. So I naught will be equal to E naught by R, and hence I can say I is equal to I naught sine omega t. So this is how the current varies. So if I have to draw a graph showing the variation of current and EMF with time, so I'm showing I as well as E on this particular graph. So let's say EMF का कुछ इस तरह का variation है sinusoidally. So I hope you understand कि current की जो peak value है वो EMF की peak value से कम होगी. तो this is how the graph of current would go. This is how it is.
सो करंट का ग्राफ भी साइनोसॉइडल होगा, ईएमएफ का ग्राफ भी साइनोसॉइडल होगा, बट ईएमएफ वाला जो ग्राफ है अपना वो ये है और करंट वाला ग्राफ ये है. This is the peak value of current. So this is what I'll call as I naught, and this is the peak value of EMF. So this is what I'll call as E naught. Right? So बच्चों ये है अपना I naught, E naught के लिए ग्राफ. Please draw them properly, and I'll give you a minute to do that. So this is how we have understood the resistance. एक एक एलिमेंट समझ लो, उसके बाद देखो कितना स्पीड से हम चल सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपेसिटर कनेक्टेड टू एन एसी. हाउ डज अ कैपेसिटर बिहेव व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी. उसके बाद आप देखोगे मैं आपको एकदम मजेदार तरीके से आई टेल यू व्हाट विल हैपन व्हेन थ्री ऑफ देम आर कनेक्टेड, एंड यू विल डू एवरीथिंग विद अ फेजर डायग्राम. व्हाई आई टेल यू. सो बच्चों अब एसी से कनेक्ट किया हमने, ये कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी. एक चीज जो हम वेरी नहीं कर सकते हैं, उसे हम कभी चेंज नहीं करेंगे, इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल. पावर हाउस से सप्लाई आ रही है, यू कैन नॉट चेंज इट. करंट विल डिपेंड ऑन दिस. तो अब अगर ऐसे सर्किट में मैं देखूं तो मैं जानता हूं Q चार्ज at any moment across the capacitor will be equal to C into E, which will be equal to C E naught sin omega t. Now we have to find I. याद रखना I. So I is equal to dq by dt. So I differentiate this with respect to time. So what do I get? I get C E naught omega cos omega t. ठीक है ना? So this can be written as E naught divided by 1 upon omega c cos omega t. राइट. अब हम जानते हैं कि हमें कंपेयर करना है करंट्स को अगर, सो एवरीथिंग शुड बी अ फंक्शन ऑफ साइन. सो cos omega t कैन बी रिटन एज, सो यहां पे लिख देता हूं मैं पहले. लेट्स से दिस 1 upon omega c विल बी कॉल्ड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बिकॉज ये टर्म जो E नॉट के नीचे आ रहा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट यू गॉट एज रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस वाला टर्म. सो दिस इज equivalent to the resistance offered by the capacitor हम बोल सकते हैं. तो this can be written as E naught upon XC. XC is called the capacitive reactance cos omega t. अब अगर हम देखें तो हमें पता है in the case of a capacitive circuit, अब मैं cos omega t को क्या लिख सकता हूं? E naught upon XC sin pi by 2 minus omega t. ठीक है ना बच्चों? सो ये आ गया साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी. बट हम जानते हैं कि ये हमने लिख तो दिया, बट हमें ऐसे टर्म्स चाहिए जहां पे ओमेगा टी के साथ कुछ एडेड हो, सो दैट आई कैन कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन. अब हम जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में हर जगह साइन ओमेगा टी आ रहा है, तो इफ देयर इज समथिंग लाइक प्लस एडेड टू इट, तो ओमेगा टी के साथ कुछ एडेड है या सब्ट्रैक्टेड है, तो एग्जैक्टली हम कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सी चीज आगे है कौन सी पीछे है इन टर्म्स ऑफ द फेज. तो इसलिए अब मैं जानता हूं साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. तो मैं इसको लिख सकता हूं here I is equal to, इसको मैं I नॉट लिख सकता हूं. I नॉट इज E नॉट बाई XC साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी. सो यहां से मेरे पास आ गया I इज इक्वल टू I नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, और I can write it as I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2. Now this has a lot of significance.
a lot of significance, and if I have to understand that significance, it is always better that I draw the sinusoidal graphs for this, और हम वो sinusoidal graph अब बनाने जा रहे हैं। अब आप देखिएगा, पहले हम बनाएंगे EMF का ग्राफ जो स्टैंडर्ड है, and we know how the graph looks like. The graph of EMF with time looks like this. This is how the EMF graph looks like. Now, here the current is leading the EMF by a phase angle pi by 2. इसका मतलब टाइम की वैल्यू को इसमें 0 पुट करूं, इस इक्वेशन में अगर मैं टाइम को 0 पुट करूं, तो also I get I is equal to I naught sin pi by 2, which means we start with the peak value of current. So current वाला ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। I hope बच्चों समझ में आया। The current graph is leading the EMF graph by a phase angle of pi by 2. मैं ये ग्राफ्स क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इसके बेसिस पे मैं अभी आपको थोड़ी देर में कुछ और करवाने वाला हूं। प्लीज बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दीज ग्राफ्स। प्लीज टेक अ मिनट और टू टू नोट इट डाउन। आप इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूं। सो बच्चों, कैपेसिटर का हमें पूरा का पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया। बच्चों ध्यान रखना इन डेरिवेशंस में, व्हेन वी आर डूइंग दीज डेरिवेशंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड इंश्योर कि हम अपना रीजन समझ रहे हैं कि हमें हर केस में एक ही काम करना है, आई और ई दो चीजें देखनी। नेक्स्ट लेट मी कम टू द केस ऑफ एन इंडक्टर connected to an AC supply. Now, what happens when I talk about an inductor connected to an AC supply? So, inductor, let's say, has an inductance L. So, I'll write the equation E minus L di by dt is equal to 0, or E is equal to L di by dt, which also implies that di by dt is equal to E by L. बच्चों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, कि मुझे I का एक्सप्रेशन निकालना है। सो ये हो गया अपना E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन L, है ना। एकदम एसी खतरनाक फॉर्म है। सो डीसी पढ़ते पढ़ते सिंपल लग रहा होता है सब, फिर करंट में सर्किट्स आते हैं, गंदे लगते हैं, परेशान होता है इंसान, फिर सोचता है लाइफ में चलो इससे मुश्किल कुछ नहीं होगा। देन यू कम अक्रॉस एसी, और जहां साइन और कॉज आता है दिमाग फ्यूज हो जाता है वैसे ही, कि यार पंगा है, छोड़ो इसको, रहने दो। सो लेट्स नॉट look at it that way. It is very simple, साइन और कॉस का डिफरेंशिएशन है। तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, अब मैं अगर यहां पे देखूं तो इट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल sin omega t. Now if I have to integrate, I'll say di is equal to E naught upon L sin omega t dt. We integrate on both sides. So what do I get? I get I is equal to E naught by omega L cos omega t with a negative sign, which can be written as E naught by omega L sin pi by 2 minus omega t with a negative sign. Now, when I take this negative sign inside, it becomes E naught upon omega L sin omega t minus pi by 2. So I can say I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2, and I naught here is equal to E naught
पाई ओमेगा एल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और ओमेगा एल को हम बोलते हैं एक्सएल, सो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो बच्चों एक चीज हमें समझ में आ गई कि ईएमएफ हर जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और करंट या तो ईएमएफ से पाई बाई टू लीड कर रहा है या लैग कर रहा है या सेम फेज में है, ये हमें कुछ हद तक समझ में आया। सो इफ आई हैव टू ड्रॉ दी ग्राफ्स हियर, सो ग्राफ कैसा दिखेगा? Let's again look at it. In this particular case, I'm drawing first the EMF E versus the time T. So EMF versus time का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, it will remain the same sinusoidal curve that we've been getting, and that's how it is. Now if I have to draw the phasor for current, you can see here that at t equal to 0, you get sin minus omega t, which means you are starting with minus I naught. So आप start कर रहे हो किससे? माइनस आई नॉट से। माइनस आई नॉट का मतलब इधर से स्टार्ट कर रहे हो। जिस टाइम पे ईएमएफ पीक पे पहुंचा, करंट 0 पे हो गया। जिस समय ईएमएफ अपनी 0 वैल्यू पे पहुंचा, करंट पीक पे पहुंच गया। So it will be a sinusoidal curve only. It will be a sinusoidal curve only, but this is how it looks like. This is how it looks like. Simple. अब आपको ये सब बनाना आना चाहिए और उसका रीजन समझ में आना चाहिए। बच्चों साइन कर्व है या कॉस कर्व है, दिखते एक ही से हैं, बस ये कि स्टार्टिंग पॉइंट्स की वजह से चेंज आता है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर ईएमएफ, दिस इज द ग्राफ फॉर करंट विद टाइम। अब मैंने जो आपको अभी तक पढ़ाया, दिस इज द बेसिक, और इसके बेसिस पे हम कुछ बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सर्किट्स की, जिसमें एलसीआर सर्किट, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट सब कुछ आने वाले। So now we come to the most important thing. So let me come to that. I hope all of you noted. In case you haven't, I'll take a moment to go back to the previous page so that you're able to understand, you're able to assimilate, you're able to do, and then subsequently we'll move to the next thing. और अब इस चैप्टर में मजेदार वाली चीज आने वाली है। So I hope you must have noted by now. तो हम आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो आप, let me look at each of the circuits and write the equations again, क्योंकि अब हमें कुछ करना है compare. So सबसे पहले मैंने बनाया R connected to an AC. Then I draw a capacitor connected to an AC. Then I draw an inductor connected to an AC. Right. Now, how do we handle them? How do we do? अब बच्चों सबसे पहली चीज, हर जगह E is equal to E naught sin omega t है। E is equal to E naught sin omega t है। E is equal to E naught sin omega t है। I is equal to I naught sin omega t। I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2, and I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. अब बच्चों हम हर केस में बनाएंगे phasor diagram. So what we're trying to do here is we are trying to look at a phasor diagram. बच्चों phasor diagram is basically used to denote the phase difference. So it is like a vector diagram, जैसे आप vectors बनाते थे, but phasor diagram है। तो अगर मैं resistance वाले केस का बनाऊं, where we have resistance in a circuit, तो आप देख रहे हो कि आपका
ईएमएफ का फेजर बनाया सबसे पहले, लेट से इधर है। करंट भी, क्योंकि ईएमएफ और करंट दोनों का फेज एंगल सेम है, तो करंट का भी फेजर ऐसे ही होगा। बट क्योंकि करंट की वैल्यू, पीक वैल्यू ईएमएफ से कम होगी, तो दिस इज हाउ आई विल शो इट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा फेजर डायग्राम जब आप बना रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे कोई सा भी फेजर डायग्राम आप बनाओगे, एक्स एक्सिस पे आप क्या दिखाओगे? एक्स एक्सिस पे आप हमेशा करंट दिखाओगे। क्या दिखाओगे? करंट इन ऑल फेजर डायग्राम्स। सो हर फेजर डायग्राम में ऑन द करंट एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस यू विल शो करंट। अब मैं आता हूं कैपेसिटर वाले केस में। सो व्हेन आई कम टू द केस ऑफ अ कैपेसिटर, करंट वाली लाइन पे दिखाया मैंने, एक्स एक्सिस पे दिखाया मैंने करंट, एक्स एक्सिस पे करंट। करंट आगे है ईएमएफ से, बाय व्हाट फेज एंगल? पाई बाय 2। यानी कैपेसिटर के केस में द ईएमएफ वुड बी शोन लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय अ फेज एंगल पाई बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो इफ आई हैव टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम of a capacitor circuit, current is on the x-axis और 90 डिग्री से EMF करंट से पीछे है फेज में, इसलिए मैंने उसे नीचे दिखाया। I'm sure all of you would now be clear about how the phasor diagram of an inductor circuit look like. So inductor के केस में if you show the current on the x-axis as has been decided, as is the convention, the EMF would be along the positive y-axis leading with a phase angle of pi। आप देख रहे हो ना, करंट यहाँ पे पीछे है, इसीलिए मैंने सारी इक्वेशन जो करंट की बनाई है उसमें ओमेगा टी को पहले लाया हूं, ओमेगा टी को पहले लाया हूं, ओमेगा टी को पहले लाया हूं, ताकि उसके साथ अगर कुछ प्लस पाई बाय 2 है तो समझ में आ गया लीड, माइनस पाई बाय 2 है तो समझ में आ गया लैग। तो करंट में यहां पर लैग है विद द ईएमएफ, यहां पर लीड है, यहां पर सेम फेज है। सो दैट्स हाउ द सिस्टम लुक्स लाइक। इस डायग्राम को बहुत क्लियरली बनाइएगा। सारे फेजर डायग्राम्स में पॉइंट टू बी नोटेड अगेन, current is on the x-axis and EMFs are on the y-axis, x-axis depending on the phase difference that they have। बहुत अच्छे से बनाना है इस डायग्राम को, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, आपको फिर मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। So I hope it is enjoyable till now। समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो, डिराइव कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो, सब समझ में आएगा आपको यहां से। Right? So have all of you drawn the phasor diagrams? Okay, so now if you've drawn all the phasor diagrams, अब मैं एक एक करके बात करता हूं। अगर आपके पास पहला सर्किट है आरसी सर्किट, अगर आपके पास आरसी है, इसका मतलब एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटेंस साथ में लगे हुए हैं टू एन एसी सप्लाई। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि यहां से आपको कुछ और टर्म्स पता चलेंगे। This is R, this is C, this is equal to E is equal to E naught sin omega t। अब बच्चों हम जानते हैं इन रियलिटी होगा क्या कि हमने ये EMF अप्लाई किया विच इज दी वोल्टेज अप्लाई किया विच इज E naught sin omega t, करंट इसमें फ्लो होना शुरू हुआ। अब किसी भी टाइम पे जो करंट होगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू का करंट फ्लो हो रहा होगा, जैसे ही टाइम चेंज होगा करंट चेंज होगा, बिकॉज करंट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, EMF is also a function of time। तो करंट और EMF दोनों चेंज हो रहे हैं, सप्लाइड EMF। अब बच्चों रेजिस्टेंस के अक्रॉस और जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो EMFs हैं वो E naught sin omega t नहीं है,
क्योंकि करंट सब में एक टाइम पे एक पर्टिकुलर करंट फ्लो हो रहा होगा, जो करंट रेजिस्टेंस के थ्रू होगा वही कैपेसिटर के थ्रू होगा, सो बोथ विल हैव द सेम करंट व्हिच मींस द सेम वैल्यू ऑफ करंट, द सेम फेज ऑफ करंट। सो अगर मैं फेजर बनाता हूं, सो आई विल शो द करंट in the circuit like this. I will show the EMF across the capacitor. Let me call it VC now in this case, and the voltage across the resistor as VR. Let's say ऐसे phases दिख रहे हैं। अब बच्चों हम जानते हैं हमारे नेट ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ आई वांट टू राइट द इक्वेशन ऑफ करंट, एंड करंट की इक्वेशन में कुछ चीजें आएंगी। फर्स्ट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस फाइव। नाउ what I have to find here, I have to find, first thing is I have to find I नॉट क्या होगा, एंड देन आई हैव टू फाइंड कि फाई क्या होगा, फेज एंगल क्या होगा। अब आप देख सकते हो बच्चों, अगर मुझे नेट ईएमएफ देखना है तो नेट ईएमएफ वीआर और वीसी का फेजर सम होगा, which is just like adding vectors. So this is how the net V would look like. So this is your net V और E जिसे आप बोल रहे हो। अब यहां पे E is behind the current by a phase angle phi. So इसका मतलब current is leading the EMF by a phase angle phi. तो करंट की इक्वेशन हो गई I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहां तक हम सब पहुंच गए, प्लस फाई आ गया बच्चों, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक आप सब पहुंच गए। नाउ वी हैव टू फाइंड आई नॉट एंड फाई। अब हम जानते हैं I इज इक्वल टू ई बाय अ नेट वैल्यू, राइट। अब अगर हम देखें यहां पे तो हमें पता है कि हमारा जो VR है that can be written as I into R, and VC can be written as I into XC। आप सबने पढ़ा है ये, ठीक है बच्चों। सो जो हमारा V नेट होगा जिसे हम E बोल रहे हैं, विच इज द फेजर सम ऑफ VR and VC will look something like this, which is equal to I under root of R square plus XC square। अब बच्चों ये जो टर्म होता है इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, एंड इट इज डिनोटेड एज Z here। सो E इज इक्वल टू I इंटू Z हो गया, यानी कि I नॉट की जो पीक वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू E नॉट बाई Z। सो I नॉट हमारा कितना हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? पीक वैल्यू ऑफ EMF डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R square plus XC square। सो आई कैन से I तो मुझे पता चल गया, I नॉट मुझे पता चल गया, मुझे I का एक्सप्रेशन पता चल गया। नाउ आई हैव टू फाइंड phi। From here I can see from the triangle that tan phi is equal to perpendicular upon base. Perpendicular is VC, base is VR. So I can say that it is equal to I into XC upon I into R, which is equal to XC by R, और XC को 1 अपॉन ओमेगा C लिख सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा CR। सो ये आ गया हमारे पास tan phi। तो बच्चों हमने हर सर्किट में ये काम करना है। वी हैव टू फाइंड tan phi, which means we have to find phi, we have to find the peak value of the current, that is I naught, and I naught will always be equal to E naught by Z। Z कैसे आएगा वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। So this is the process that we are going to follow for all the circuits। 3 सर्किट हमें पढ़ने हैं, RC पढ़ लिया, इसके बाद हम LR पढ़ेंगे और उसके बाद LC पढ़ेंगे, और ये तीनों सर्किट्स पढ़ने के बाद हम
LCR, when all three are there, वो circuit पढ़ेंगे, and hopefully by that time you'll be comfortable drawing all the phasor diagrams and you'll remember everything. बहुत simple होने वाला है काम. Don't worry. Just keep noting, just keep writing. So after the RC circuit, we'll move on to an inductor resistor circuit. अब बच्चों अगर आप सर्किट में बना दे रहा हूं आपके लिए यहां, बट अगर आप नहीं भी बनाओगे ना तो भी आपको समझ में आएगा. आपके पास है LR सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सप्लाई. देखो स्पीड से काम कर लोगे अब आप. LR E is equal to E0 sin ओमेगा टी. ठीक है जी. फेजर डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले. सो फेजर डायग्राम बनाने हम चले. हमने सबसे पहले दिखाया current is along this particular direction. करंट आ गया. अब हमने दिखाया EMF. So we know that in the inductor the EMF leads. So इधर मैंने दिखा दिया VL, इधर दिखाया VR, और VL और VR का रिजल्टेंट इज योर नेट EMF. इसीलिए बच्चों नेट EMF जो है आपका इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, उसका फेज एंगल जरूर देखना है. सो दिस इज E. So you can see here that E is equal to under root of VL square plus VR square. प्रोसेस से चलना, कोई गलती मत करना. अंडर रूट ऑफ VL का मतलब हुआ I into XL का स्क्वायर प्लस I into R का स्क्वायर. So you get E is equal to I under root of XL square plus R square. So you get E is equal to I into Z, and Z is the impedance here. Impedance is similar to the resistance that you had in a DC circuit. तो अगर यहाँ पर वो net resistance की बात करूँ तो that is Z. This is how it looks like. तो अब देखो बच्चों, अब हमने निकाल दिया तो अब हमारा I जो हो जाएगा, I की जो पीक वैल्यू होगी that will be equal to E0 upon Z, which is equal to E0 upon under root of XL square plus R square. ठीक है जी, हम I0 तक पहुंच गए. अब हमें दूसरी चीज, हमें फेज एंगल्स भी निकालने थे. तो सबसे पहली चीज, here you can see that the EMF leads the current by a phase angle of phi. So E की तो इक्वेशन फिट है, E equal to E0 sin ओमेगा टी ही है. अब करंट यहाँ पे लैग कर रहा है तो I'll write I is equal to I0 sin ओमेगा टी माइनस फाइव क्यों है? क्योंकि करंट पीछे है EMF से. हमेशा EMF और करंट के बीच का नेट फेज एंगल देखना, और अगर करंट आगे है EMF से तो करंट के एक्सप्रेशन में प्लस फाइव आएगा, नहीं तो माइनस फाइव आएगा. पर जो भी आएगा फेज डिफरेंस वो करंट के एक्सप्रेशन में आएगा, EMF के में नहीं आ सकता, क्योंकि EMF सप्लाइड है हमें डायरेक्टली. वो तो जो आ रहा है वही लिखना है. So here you get minus phi, and so you can see here that tan phi is equal to VL by VR, which is equal to I into XL by I into R. So tan phi is equal to XL upon R. tan phi आ गया, यानी phi आ गया, I0 आ गया, आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं. सो यू नो you have a very well defined expression for the current, you have a very well defined expression for EMF. इनमें जो भी अननोन्स थे वो आपने सब निकाल दिए हैं. कितना सिंपल काम है अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो और अगर ठीक से कर रहे हो. प्लीज नोट दिस डाउन केयरफुली एंड देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सर्किट which is the LC circuit. So हमने कौन कौन से सर्किट्स कर लिए? हमने RC कर लिया, हमने LR कर लिया. अब नेक्स्ट आएगा हमारा LC सर्किट. And if you look at the time, we have been able to do each of these circuits in close to 5 minutes. 5 to 7 minutes at the most.
अब एक एलसी सर्किट आप अगर ट्राई करोगे तो आपको खुद मजा आएगा, क्योंकि एलसी सर्किट थोड़ा मजेदार है और करने में अच्छा भी लगता है। एलसी सर्किट, तो सबसे पहले आई ड्रॉ एन इंडक्टर, देन आई ड्रॉ अ कैपेसिटर, and then I connect both of them to an AC supply. L C E is equal to E naught sine omega t. We have reached till this place. अब क्या होगा बच्चों? L दिख रहा है, C दिख रहा है, E is equal to E naught sine omega t दिख रहा है. Now, what next? सबसे पहली चीज हम फेजर डायग्राम बनाएंगे. करंट along the x-axis, VL along the positive y-axis, VC along the negative y-axis, क्योंकि VC लैग करता है करंट से, VL लीड करता है. अब ये बच्चों VL लीड करता है, VC लैग करता है. आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट, अदरवाइज मैं यहां दिखा देता हूं आपको. इधर आप देख सकते हैं कैपेसिटर के केस में करंट आगे है यानी ईएमएफ पीछे है, करंट आगे है यानी ईएमएफ पीछे है. दिस इज हाउ इट इज. आप चाहो यहाँ EC लिख सकते हो, यहाँ EL लिख सकते हो, यहाँ ER लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये EMFs हैं अक्रॉस ईच. E अभी बोल रहा हूँ, बात एक ही है. सो अब इसके बेसिस पे इधर आ जाता हूं मैं वापस. नाउ हियर इफ आई हैव टू फाइंड द नेट EMF, तो I have to assume either VL to be greater than VC or VC to be greater than VL. Suppose VL is greater than VC. अगर दोनों इक्वल हो गए तो नेट EMF खतरनाक वैल्यू ले लेगा, और वो एक सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ हो जाती है जिसकी हम बात करेंगे. तो अब यहाँ पे नेट EMF आ गया इन दोनों का वेक्टर सम, विच इज VL minus VC. This is your E. So now you can see that the net EMF is leading the current by a phase angle of pi by 2. So मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं. E की इक्वेशन क्या हो गई बच्चों? E नॉट साइन ओमेगा टी. करंट की इक्वेशन क्या हो गई? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फेज एंगल, यहां बड़ा क्लियर है कितना? पाई बाय 2. अब सपोज करो अगर VC ग्रेटर देन VL होता, VC ग्रेटर देन VL होता, तो VC वाला वेक्टर VL से बड़ा होता, यानी नेट EMF VC वाले डायरेक्शन में आता. तो उस केस में वोल्टेज पीछे होता और करंट आगे होता, तो मैं यहाँ पे प्लस पाई बाय 2 लिखता. दैट इज द डिफरेंस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि आपका जो नेट E है दैट इज इक्वल टू VL minus VC, which is equal to I into XL minus XC. So I naught is equal to E naught upon XL minus XC. ठीक है जी, राइट. आप सब जानते हो XL is equal to omega L, XC is equal to 1 upon omega C, and both will have the units of ohms, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस हैं. ध्यान रखने वाली बात है, राइट. सो I नॉट आ गया, फाई आ गया, सब कुछ आ गया. कोई चीज जो नहीं समझ में आई है अभी बता दो. नाउ व्हाट विल हैपन इन सच अ सर्किट इफ XL becomes equal to XC? ऐसा कब होगा? जब ओमेगा L इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C हो गया और ओमेगा हो गई 1 बाई रूट LC. सो अगर सर्किट में जो L और C हैं उनका प्रोडक्ट करता हूं और 1 बाई रूट LC करता हूं, और वो अगर इस जनरेटर के एंगुलर स्पीड जो कॉइल के रोटेशन की है उससे मैच कर गया, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट LC हो गया, तो क्या होगा?
उस केस में करंट इस सर्किट में डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि चार्ज विल कीप ऑसिलेटिंग बिटवीन द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर विच इज लाइक एन एसएचएम। ये चार्ज ऑसिलेट करता रहेगा और होगा क्या, चार्ज ऑसिलेशन की वजह से हमें करंट डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे इस सर्किट में। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। So resonance means that at resonance, the natural frequency of the circuit matches the rotation, the angular speed of rotation of the coil in the generator, and hence the current becomes not defined, क्योंकि उस केस में आपका जो XL इक्वल टू XC हो गया, यानी XL माइनस XC 0 हो गया, यानी करंट आपका नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, अदरवाइज इन जनरल ये रहा फॉर्मूला हमारा आई का, और ये रहा फॉर्मूला आई का। राइट बच्चों, आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लास्ट सर्किट की तरफ भी चल सकते हैं, विच इज द LCR सर्किट, इन अ कपल ऑफ मिनट्स। तब तक आप इसको नोट कर सकते हो। मेरे हिसाब से बच्चों समझ में आ रहा होगा। And you wanted me to explain, to do the derivation, so that is what I planned today. बच्चों, आई एम पोस्टिंग अ मैसेज इन द टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज उस पर रिप्लाई कर दो फटाफट। बच्चों, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में लिखा है कि इफ यू आर अटेंडिंग द सेशन, बिकॉज़ इन द प्रीवियस सेशंस आई हैव बीन डूइंग न्यूमेरिकल्स, तो अगर आप लोगों को ऐसे कुछ डेरिवेशंस करने हैं तो प्लीज क्विकली put a message there whether this is what you needed or you were looking at the derivation, sorry, the numerical kind of sessions only. So that would always be able to guide us, to tell us what is it that you want, and we'll keep changing and doing as per your needs. So चलते हैं अगले केस पे अब, which is the king of all cases, LCR circuit. So here you have an inductor, a capacitor, and a resistor all connected to an AC supply. E is equal to E naught sine omega t, L, C, and R. Now, how do we handle such a case? We'll do the same thing, बच्चों। मैं सबसे पहले फेजर फॉर द करंट बनाऊंगा। करंट वाले डायरेक्शन में ही मेरा फेजर फॉर VR आएगा, विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। इसके परपेंडिकुलर मेरे फेजर्स आएंगे फॉर द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। लेट्स से इस तरफ आया मेरा VL और इस तरफ आया VC। अब अगर VL और VC में VL is greater than VC, if I'm just considering VL is greater than VC, तो सबसे पहले मुझे VL, VC और VR का फेजर निकालना है, सम। तो ये मेरा आ गया VL माइनस VC, और ये है VR। अब मैं अगर VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट निकालूंगा, so this is how it looks like. This is how it looks like. So E is equal to like this.
So can I say E is equal to under root of VL minus VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर. So E is equal to I बाहर आ गया अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. So Z या टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट Z जिसे हम इंपीडेंस बोलेंगे, आपके लिए ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है. ये हो गया कितना अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. Right, this is the value of Z. So now we can say that I is equal to E by Z. ठीक है. So I naught will be equal to E naught by Z मिल गया. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं that the current is lagging behind the EMF by a phase angle phi. तो करंट का जो एक्सप्रेशन होगा उसमें आएगा I naught sin ओमेगा t माइनस फाई, क्योंकि करंट पीछे है. और अब अगर मैं tan phi निकालूंगा तो tan phi which is equal to the perpendicular divided by base, तो ये हो गया कितना XL minus XC by R. So can I say tan phi is equal to XL minus XC by R. So अगर मुझे वैल्यूज पता हैं तो मैंने अब सब निकाल दिया. बच्चों देखो I नॉट निकालना है which is equal to E नॉट by Z. उसके लिए Z पता होना चाहिए, हर सर्किट का Z निकालना आना चाहिए और उसके बाद हम सारी की सारी चीजें निकाल सकते हैं. बहुत सिंपल काम है. But the most important thing is the phasor diagram. If you have understood the phasor diagram, please ensure that you practice it a lot at home, क्योंकि यही सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए. Right? But I'm again requesting that if this is what you were looking at, please give the feedback in the chat box. If you wanted something else, please write that also in the chat box so that we're able to change the things accordingly. ठीक है बच्चों, अब आपने LCR सर्किट बना लिया तो अब आपके सारे के सारे सर्किट यहीं से आ जाते हैं. ये आप देख सकते हो LCR सर्किट में अगर XC को 0 कर दोगे तो LR सर्किट आ जाएगा, अगर XL को 0 कर दोगे तो RC सर्किट आ जाएगा और अगर R को 0 कर दोगे तो LC सर्किट आ जाएगा. सारे सर्किट वहीं से निकल आएंगे LCR सर्किट से. तो इतनी सिंपल चीज है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ समझ में आने वाली बात है. अब हम आते हैं यहां पर नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे विच इज पावर इन एन एसी सर्किट. पावर का बच्चों हमें बड़ा सिंपल फॉर्मूला है. पावर दो तरह की होती है, एक होती है पावर इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू E एट दैट इंस्टेंट मल्टीप्लाइड विद I एट दैट इंस्टेंट. E एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी and I is equal to I naught sin ओमेगा टी प्लस और माइनस फाइव. सो अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, हमें इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगी विच इज नॉर्मली नीदर आस्क्ड नॉट डिजायर्ड. हमसे पूछी जाती है एवरेज पावर. P एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E I, right, with respect to dt divided by integral of dt for the entire cycle, that is 0 to capital T, this is 0 to capital T. So ये वैल्यू निकल के आती है E RMS I RMS cos phi. अब हम जानते हैं, हम इसे लिख सकते हैं E नॉट अपॉन रूट टू इंटू I नॉट अपॉन रूट टू इंटू cos phi.
which is equal to E naught I naught upon 2 cos phi. अब यहाँ पे cos phi क्या होता है? इस cos phi को हम नाम देते हैं, we call it the power factor. So इस पावर फैक्टर और यहाँ पे फॉर्मूले में हम कुछ और बात करेंगे, बट सबसे पहली चीज आप इस पावर एवरेज पावर के फॉर्मूले तक नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों? ओके। अब हम एवरेज पावर की अगर बात करें तो व्हाट इज cos phi? cos phi को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम फिर अपने फेजर डायग्राम पे आते हैं। इन एन LCR सर्किट, तो अब अगर हम देखें तो I के डायरेक्शन में आया VR, इस तरफ आया VL, इस तरफ आया VC, और VL और VC का नेट आया इस तरफ, विच इज VL माइनस VC। और ये आ गया हमारा नेट EMF E। E और I के बीच का एंगल हो गया कितना? फाई। अब cos phi अगर हम देखें तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है cos phi। cos phi इज इक्वल टू VR डिवाइडेड बाय E। So can I say this is equal to IR divided by I into Z? So cos phi is equal to R by Z. This is also called power factor of a circuit. So if we're looking at it, cos phi is equal to R by Z. If by chance, if R is 0 and let's say Z is non-zero, ठीक है ना, तो cos phi हो गया 0 और P average भी हो गई 0. So any circuit that does not have resistance is called a powerless circuit for us because it does not consume any power. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। R 0 है, Z नॉन जीरो है, नॉर्मली ऐसे ही होगा, तो cos phi 0 हो जाएगा। cos phi 0 होते ही जो हमारा एक्सप्रेशन था एवरेज पावर का, मैं फिर लिख देता हूँ। P एवरेज का फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे लिखा था E नॉट बाई रूट टू I नॉट बाई रूट टू, जो मल्टीप्लाई होके हो गए E नॉट I नॉट अपॉन 2 cos phi, ठीक है ना। सो अब ये वाला cos phi अगर 0 हो गया तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ सर्किट 0 हो गई, राइट। So we've touched upon almost everything in this chapter that was needed, except for a few things like a transformer and some simple things which I think you all should be able to do on your own. इससे ज्यादा मैं कराऊंगा तो इसमें माथा पक जाएगा। So I think this makes a lot of sense, but I would again want to reiterate on a few things, इसलिए मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा इसका recap कर लेते हैं। बच्चों, रिकैप में मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम फेजर डायग्राम्स देखेंगे। फेजर डायग्राम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमने देखा कि ईएमएफ का एक्सप्रेशन, वेदर इट्स अ रेजिस्टिव सर्किट और अ कैपेसिटिव सर्किट और एन इंडक्टिव सर्किट, अ प्योर सर्किट, in that the EMF will be E naught sin omega t only in all cases. करंट की बात करूंगा तो in the case of a resistor the current is in the same phase which is written as I naught sin omega t. In the case of a capacitor, it is equal to I naught sin omega t plus pi by 2, which means current is leading, current lead कर रहा है with respect to the EMF by an angle of pi by 2.
If I look at an inductive circuit, here the current is lagging behind the EMF by an angle pi by 2. आपने सब में देखा कि आपका करंट वाला जो लाइन है, करंट वाला लाइन वो हमेशा एक्स एक्सिस पे है. दैट वाज वन थिंग दैट आई स्टार्टेड विद. और ईएमएफ यहाँ पर लीड कर रहा है बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2, तो यहाँ पर पाई बाय 2 का फेज एंगल हमने ऐसे दिखा दिया और ईएमएफ लीड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द करंट. So these were the individual phasor diagrams. Phasor diagram से you're able to visualize everything, otherwise trigonometrically आप कर नहीं पाते हो. Now we came to an RC circuit. अब हमने करंट का फेजर बना दिया. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, जिसे अभी थोड़े पहले वहां ER बोला था, वो यहाँ VR दिखा दी है और जो EC था उसे VC दिखा दिया. तो करंट से VC is lagging by a phase angle pi by 2, whereas VR is in the same phase. So the net EMF that you get is the vector sum of these two or the phasor sum of these two, which is equal to under root VR square plus VC square, which can be written as VR को I into R लिख सकता हूँ, VC को I into XC लिख सकता हूँ. तो I बाहर आ गया तो ये हो गया under root R square plus XC square. So E is equal to I into Z से अगर compare करूँ, where Z is this total constant which is similar to the resistance of a circuit, तो Z की वैल्यू आ गई मेरी निकल के. कितनी आई मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, मैं लिख देता हूँ. Z is equal to कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. एक बार Z आ गया तो उसके बाद हम सब काम कर सकते हैं. यहाँ पे फिर हमने I नॉट की वैल्यू निकाल दी, विच विल बी E नॉट बाई Z, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट. एंड tan phi निकाल दिया. tan phi हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा. इस केस में परपेंडिकुलर है VC और बेस है VR, तो ये आ गया XC बाई R या 1 अपॉन ओमेगा CR. सिमिलरली अगर हम अब देखें एक LR सर्किट को, तो LR सर्किट में VL is leading the current and VR is along the phasor of current. तो net phasor upward आएगा, which is phi. Tan phi will be equal to XL by R and Z will be equal to under root of XL square plus R square, and E naught will be equal to I naught by Z. I naught will be equal to E naught by Z, and this is the formula for I naught. ठीक है. तीसरा सर्किट आता है LC सर्किट. LC सर्किट पे इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों लगे हुए हैं. अब इस केस में अगर हम देखें तो वोल्टेज इज लीडिंग the current in the inductor and voltage is lagging in the capacitor. So VL और VC के बीच का एंगल है कितना, पाई बाई 2, और I और VL और VC के रिजल्टेंट के बीच का एंगल होगा पाई बाई 2, राइट. सो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो VL माइनस, if VL is greater than VC, तो VL माइनस VC अपवर्ड्स आया, तो करंट से लीड कर रहा है बाय एन एंगल पाई बाई 2, तो करंट इसका मतलब उससे लैग कर रहा है बाय अ क्लियर एंगल पाई बाई 2. सो वो हमने लिख दिया. E आ गया VL माइनस VC, I आ गया E नॉट बाई XL माइनस XC. अगर XL इक्वल टू XC हो जाए तो उस केस में करंट डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि करंट के जो डिनोमिनेटर में टर्म आ रहा है वो जीरो हो गया, एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड. करंट नॉट डिफाइंड है क्योंकि यहाँ पर चार्ज L और C के बीच में ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, बाकी पार्ट ऑफ द वायर में करंट नहीं होगा. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग which needed to be observed, which needed to be seen. Third, the third or fourth, the most powerful circuit, which is the LCR circuit. ये आ गया तो इसमें से एक एक एलिमिनेट करके पीछे वाले सर्किट्स आते रहेंगे. So LCR है तो VL दिखाया, VC दिखाया, VR दिखाया, और I का डायरेक्शन और VR का डायरेक्शन सेम है. So resultant V निकालने के लिए, which is being called E, we'll have to do a vector sum और a phasor sum जिसे हम बोलते हैं. तो वो हो जाएगा VL माइनस VC, इनका इन दोनों का हो गया VL और VC का, और VR, ये सब मिला के मेरा आ गया E is equal to under root of VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर. सो Z आ गया अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि EMF इज लीडिंग द करंट बाय फेज एंगल फाई, तो आ गया ओमेगा टी माइनस फाई I नॉट के साथ, और tan phi आ गया कितना, perpendicular, that is XL minus XC divided by R. That is how we have been able to relate to and figure out these circuits.
इसके बाद हमने बात की किसकी, पावर की। पावर दो तरह की होती है, एक इंस्टेंटेनियस पावर जो निकालना खतरनाक ही नहीं बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री बड़ी खतरनाक लग जाती है, और दूसरी पावर आती है एवरेज पावर। एवरेज पावर इज डिफाइंड फॉर वन साइकिल, जिसका फॉर्मूला आता है ERMS IRMS cos phi। cos phi यहाँ पे कहलाता है पावर फैक्टर, और ERMS और IRMS की वैल्यू रखूं तो वो गई E0/√2 एंड I0/√2। उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे cos phi भी निकालने की कोशिश की। cos phi निकालने के लिए we again drew the phasor diagram. In the direction of I, we showed VR, and VL and VC were perpendicular to VR, one upwards and the other downward respectively. So cos phi is equal to VR by E, which is equal to I into R divided by I into Z. So यहाँ पे I cancel होके cos phi हो गया R by Z, which is called the power factor of a circuit. If R is equal to 0 and Z is non-zero, then cos phi becomes 0 and average power consumed by the circuit is 0. So P average is equal to E naught I naught by 2 cos phi. मुझे लगता है आज के लिए इतने डेरिवेशन बहुत हैं. If you've been able to understand them, if you've been able to do them, that's great. And if you want me to do the other chapters in a similar way, we can do some of them. But then you'll have to tell me clearly which ones do you want me to do. ठीक है बच्चों? So with that, I will end the session today here. In case you have any doubts, please get in touch with us. You can even share it in the Telegram group, and we'll try to solve them and send it back to you as soon as possible. ठीक है बच्चों? चलिए. Okay then. Right. Okay. And thank you from my side. Thank you. Enjoy. Have fun. Have good time. Thank you.